आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं DK TV उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे वजीर खारिजा के हवाले से। वजीर खारिजा एस जयशंकर का कहना है कि भारत ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म शेख हसीना को मदद की यकीन दहानी कराई है, जबकि उन्हें मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला करने के लिए भी वक्त दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देते हुए मौसूफ वजीर ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के फौजी सरबराह से बात की है ताकि इस मुल्क में 10,000 भारतीय तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। I rise to apprise this August House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Speaker, sir, since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. मरकजी सरकार बांग्लादेश की सूरत-हाल पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है, ये कहना था ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान वजीर खारिजा एस जयशंकर का। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की मुल्क वापसी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां तकरीबन 20,000 हिंदुस्तानी शहरी, जिनमें से 20 तलबा है, उनमें से 8,000 की मुल्क वापसी हो चुकी है, जबकि बाकियों के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान बांग्लादेश में अपने सिफारती मंसूबों की हिफाजत कर रहा है, जबकि अक़लियाती तबकों से वाबस्ता अफराद की तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर का ये भी कहना है कि हम गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार ढाका के हुकाम के साथ राबते में हैं। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker, sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Speaker, sir, the situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पड़ोसी मुल्क में पैदाशुदा गैर मामूली हालात को मद्देनजर रखकर भारत को इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था। Now the eastern front has opened. We should be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis and that they will maintain a cordial relationship with our nation. Thank you. Dr. Saab, do you think that there are the third parties that are involved in the Bangladesh? Is there any factor? There was unrest, not today, for many years there has been unrest. And the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. And putting all these things together really led to a situation
whereby the government had to fall. इधर आने वाले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो सकती है। जीके टीवी से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना था। मौसम पिछले कई दिनों से थोड़ा सा अबरालूद है, कुछ एक जगहों पे बारिशें, यहाँ पे भी थंडर शावर एक्टिविटी। और आज अर्ली मॉर्निंग जम्मू डिवीज़न के अंदर कुछ एक जगहों पे हैवी और वेरी हैवी बारिशें हुई हैं। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो है 111 मिलीमीटर, जम्मू के अंदर लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 117 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रहा है कल दिन भर। तो आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का हो सकता है। डे टाइम में मौसम अमूमन पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स होंगे। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर कल से नहीं है, लगभग 10 तारीख शाम तक। उधर जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के टाउन हॉल में आज पब्लिक दरबार कम शिकायत अजाली प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के दर्जनों लोगों ने शिरकत की। जबकि मुनक्किदा प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद मौजूद थे। आज लोगों के बीच में उनसे बातचीत करके, उनके मसाइल सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जोशो खरोश से, बहुत अच्छे माहौल में लोगों ने अपनी बातें कही। जिला इंतजामिया की बहुत तारीफ हुई। हम कितना भी काम करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रहेगी, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के मसाइल को करीब से सुने, उन तक पहुँचें और यथा सामर्थ्य उसको दूर करने की, उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। बहुत सारे मसले यहाँ के टाउन के थे, कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ के थे, कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के थे, कुछ टूरिस्ट कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड, टाउन की ट्रैफिक से रिलेटेड काफ़ी मुद्दे थे। यहाँ का जो हॉस्पिटल है उससे मुद्दे रिलेटेड थे, कुछ डिमांड्स थी। सो कोशिश ये रही कि जो मुद्दे हम यहाँ पर ऑन स्पॉट कर सकते थे, कुछ फैसले हमने लिए, वो ऑन स्पॉट कर दिए। डिमांड्स को डीसी साहब अलग तरीके से प्रायोरिटाइज करके देखेंगे और बजट में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमें अपनी कारकर्दगी को सुधारना है, चाहे वो ट्रैफिक की बात करें, चाहे हम जिला इंतजामिया में या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारे हॉस्पिटल है उसकी है, उसके लिए डीसी साहब को हमने गुजारिश की है अगले 15-20 दिन में सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठ के देखेंगे कि लोगों ने जो जो इश्यूज को पॉइंट आउट किया है उसको हम रिजॉल्व कैसे करें। तो आज ये जो यहाँ पर हमने कुछ चर्चा की वो बहुत ही आई थिंक अच्छी रही, लेकिन ज़रूरत अब इस बात की होगी कि इसको हम आगे कैसे ले जाते हैं। उधर सूबे जम्मू के उधमपुर बसंतगढ़ इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के दरमियान मुसल्लह तसादुम आरई का आगाज हुआ। जराये के मुताबिक फोर्सेस को इलाके में जंगजू की मौजूदगी की इतला मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। जबकि तलाशी के दौरान मुश्तबा मकाम के करीब पहुंचने पर वहां छुपे जंगजू ने उन पर हमला किया, जिसके बाद तरफेन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। तमाम आखिरी इतला मिलने तक इलाके में झड़प जारी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। जीके टीवी देखते रहिए।